Hello students, how are you all? Hope all of you are fine and following the conditions of lockdown which has been allotted by government. Today, like our early classes, we are going to start a small topic which is very important from the point of view, and I am going to explain this topic. And today's topic is types of economy. Just all of you take the pen and papers and make the notes also meanwhile while understanding this. And if you are having any queries, you can ask me in my personal number you all are having. So today we will start types of economy. Okay. In our last class we have studied about economy, and in that we have studied about economic activities, non-economic activities, normative and positive types of economies. And now today we will discuss it further depth and our topic types of economy. So let's start types of economy. Types of economy is basically classified in three broad categories. Types of economy is classified basically in three broad categories. What are they? First is centrally planned economy. Centrally planned economy. Second one is market economy, and third one is mixed economy. Centrally planned economy. Let us discuss this economy first. What is centrally planned economy? Its other name is socialist economy, or you can say it a controlled economy. The other name for centrally planned economy is socialist economy or controlled economy. Okay, so what is centrally planned economy? By the name itself, it is understood that any economy whose whole sole planning, whose total planning is being made in central level. Every government, in every country there are government. Okay, so the central level means the central government. Example, we can take the country like China. Okay, चाइना एक कंट्री हम ले लेते हैं. चाइना जैसे कंट्री में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है. ठीक, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हर चीज, हर एक डिसीजन, इकोनॉमी में जितने भी होने वाले डिसीजंस हैं वो पूरा कंट्री के गवर्नमेंट लेवल के द्वारा लिया जाता है. इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी डिसीजन कंट्री में एनी इंडिविजुअल कैन नॉट टेक. इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो इसकी स्पेशलिटी बताते हैं. सेंट्रली प्लान्ड ऑफ इकोनॉमी होता कैसा है, वो पॉइंट्स लिखते जाएंगे. फर्स्ट इज सेंट्रल अथॉरिटी. Central authority means the whole sole authority, the role and responsibility of making decisions, of making any policies, rules are totally upon the authority. That is central authority, means the central government of that country. Second, equal opportunities of employment. Employment की जितनी भी opportunities होती हैं वहाँ पर वो equally distribute होती हैं सभी में. वहाँ पर कोई भी कास्टिज्म नहीं होगा, रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं होगी, कोई भी पॉलिसी जो है ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट की सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन फॉर पर्टिकुलर प्लेस. इट विल बी यूनिवर्सल एंड इट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेकंड, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन. सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी ये उन देशों में होता है जहां पर प्राइवेटाइजेशन इज स्ट्रिक्टली बैंड. यहां पर प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं है. यहां पर एक भी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो कि ये बोल सके कि वो प्राइवेटाइज्ड है. वहां पर किसी भी कंपनी को प्राइवेटली प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरा कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हैं. So abolition of privatization. Last one is equal fair distribution of wealth. Equal fair distribution of wealth. जितना भी wealth उस country के अंदर generate होता है वो total wealth it is been equally distributed among all the peoples, and all the peoples are getting a part of wealth from that particular project or proposal which has been running by the government. तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी काम होता है उसमें सभी लोगों को बराबर मौके मिलते हैं. उससे होने वाले फायदे, जितने भी उससे होने वाले लाभ हैं, वो भी सभी लोगों के बीच में बराबर के रूप में बांटे जाते हैं. तो ये था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, या हम इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसी को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए बनाया गया है.
कंट्री को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखकर बनाया गया है, ये इकोनॉमी इसलिए इसे सोशलिस्ट कहते हैं या इसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों कंट्रोल्ड कहते हैं? क्योंकि ये पूरा पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। गवर्नमेंट को कहीं पर भी लगता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इफ गवर्नमेंट थिंक्स दैट इकोनॉमी इज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, देन एंड देयर इटसेल्फ गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन, गवर्नमेंट कैन टेक एनी डिसीजंस टू मेक द इकोनॉमी सूटेबल फॉर द कंट्री लेवल। इसीलिए इसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब अगले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में देखेंगे मार्केट इकोनॉमी। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इट इज टोटली डिफरेंट देन मार्केट इकोनॉमी। सो नाउ वी विल डिस्कस इन मार्केट इकोनॉमी व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम है फ्री इकोनॉमी और इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो वो एक ही चीज है जिसे तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मैं आपको बताऊंगा। वन इज मार्केट इकोनॉमी, अनदर नेम ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज फ्री इकोनॉमी एंड अनदर नेम इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल ले लेते हैं अमेरिका। अमेरिका एक कंट्री है जहां पर मार्केट इकोनॉमी होता है। अमेरिका एक देश है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पर किस टाइप की इकोनॉमी चलती है? यहां पर फ्री इकोनॉमी चलती है या मार्केट इकोनॉमी चलती है। एग्जाम्पल चाइना जो था, चाइना का एग्जाम्पल मैंने किसके लिए दिया था? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के लिए। लेकिन अमेरिका में मार्केट इकोनॉमी चलती है। अब मार्केट इकोनॉमी होता क्या है, आइए जानते हैं। मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है, जैसे कि आप नाम से ही देखकर समझ पा रहे हैं, यहां पर मार्केट डिसाइड करता है कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए। Market itself decides that which type of economy should be available in that particular country. Why? Because here it is not centrally planned. यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए अमेरिका में डुअल गवर्नमेंटशिप है ना, डुअल गवर्नमेंट पॉलिसीज चलती हैं। वहाँ पे दो पार्टी होती हैं गवर्नमेंट की, एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी। तो वहाँ पर ऑल्टरनेट टाइम ड्यूरेशन के बाद हर एक पार्टी को मौका मिलता है कि वो अपना काम कर सके। और यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो पूरा पूरा प्राइस पे डिटरमाइंड होता है। किस पे डिटरमाइंड होता है? प्राइस पे। ठीक है, तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स। प्राइस एंड प्रॉफिट सिस्टम। प्राइस एंड प्रॉफिट सिस्टम, द प्राइस एंड प्रॉफिट सिस्टम ओनली फिक्स द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। या तो कीमत है ना, और या तो उसके प्रॉफिट सिस्टम, इन दोनों के बेसिस पे ही मार्केट इकोनॉमी वर्क करती है। दूसरा, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द इकोनॉमी। यहां पर कंज्यूमर को किंग कहा जाता है इकोनॉमी का। क्यों किंग कहा जाता है? कंज्यूमर फ्री होता है, इसीलिए देखिए इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा गया है। इससे इस इकोनॉमी में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं, इसी को रिलेट करते हुए। इसे फ्री इकोनॉमी कहा जाता है, जबकि इसको फ्री इकोनॉमी नहीं कहा जाता, इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। क्यों? मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी में कंज्यूमर फ्री होता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक कंज्यूमर जिनसे चाहे जैसा परचेस करना चाहे वैसा परचेस कर सकता है वो गुड्स को। क्यों? क्योंकि हर एक गुड्स का क्वालिटी, हर एक गुड्स का प्राइस, हर एक गुड्स का टेक्सचर, हर एक गुड्स का पैकिंग, इट कैन बी डिफर फ्रॉम अनदर, अलग अलग हो सकता है। और एक कंज्यूमर का अपना सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, जिस सेटिस्फैक्शन लेवल से वो पर्टिकुलर गुड्स को परचेस कर सकता है, या जिस सेटिस्फैक्शन लेवल पे वो कंज्यूमर उस गुड्स को परचेस करने के लिए एक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये फ्री इकोनॉमी होती है, इसमें कोई दूसरा और रीजन नहीं होता। जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं लिमिटेड ऑप्शंस को परचेस कर पाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा उसे दिए जाते हैं सोसाइटी में फॉर हिज लिविंग। तो इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल की बात करते हैं। कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस्ड होता है मार्केट में, वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीछे कितना कैपिटल लगेगा, और उस पर्टिकुलर कैपिटल के लगने के बाद वो चीज़ प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद कैसा रेस्पॉन्स देगी, उसको लोग कंज्यूमर कितना इंजॉय करेंगे, आर दे रेडी टू पे दैट मच अमाउंट, दिस आर ऑल द थिंग्स। So capital is playing a major role in this economy. Capital, investment, the investment level of the producer is also not fixed. It depends upon person to person. Means one producer is differing the amount of the capital which he is investing from another producer. हर एक producer अपने level के हिसाब से product बनाता है और वो market में उसे freely होकर उस market में वो उस product को sell कर सकता है. And in that place same the consumers are free to purchase it from any producer whom they are feeling more comfortable to buy that particular product.
अगर कोई प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जितना खर्च कर रहा है और उसमें बहुत सारे ऑफर्स दे रहा है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए जो रेडी हैं और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उतने पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ दैट इकोनॉमी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स टू द प्रोड्यूसर्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब पावर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास होना। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। किनके पास है पूरा पूरा पावर, गवर्नमेंट के पास, उस पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है और वो अपने पावर का यूज करती हैं। इन अदर वे मार्केट इकोनॉमी में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन प्रोड्यूसर्स। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, यहां पर गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, यहां पर प्राइवेटाइजेशन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, बट इन फ्री इकोनॉमी private companies are also welcomed and they are ready to produce the product as per their range, as per their capital investment. तो decentralization of power in producers, प्रोड्यूसर्स के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऑप्शन मिलता है ताकि वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं और उसे सेल कर कर प्रॉफिट इंजॉय करें। इसीलिए इसे प्राइस एंड प्रॉफिट सिस्टम भी कहा गया है। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जांपल के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी हम ले लेंगे कंट्री लाइक इंडिया, आवर कंट्री। इन आवर कंट्री विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज रनिंग? इन आवर कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी इज रनिंग। हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जहां पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी प्लस मार्केट इकोनॉमी दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और वर्क करे, उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल कंट्री लाइक इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमी के अपने फायदे होते हैं, देखेंगे। मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां पर कोई एक नहीं बोल सकता, गवर्नमेंट पूरे डिसीजंस नहीं ले सकती, ना ही प्राइवेटाइज्ड कंपनी पूरे डिसीजंस ले सकती है। और एक इकोनॉमी को सक्सेसफुली रन करने के लिए बोथ आर रेस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज which are also giving their work and occupying a large part of the capital of a growing economy for the country like India. Private and public sector both are complementary to each other and they are rather not than the competitor. ठीक है, यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कंपटीशन नहीं होता, ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा एनजीओ, आप सब लोग सुनते होंगे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर रन बाय द प्राइवेट कंपनीज, व्हिच आर रन बाय द प्राइवेट कंपनीज, बट दे आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट दे आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वो कंपनीज होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नहीं है, लेकिन इनमें पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारे यहाँ पर ही होता है, ये आप दूसरे देशों में जाएंगे तो आपको नहीं देखने मिलेगा, ये हमारे यहाँ ही पाया जाता है। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दिस आर दोज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर बीन फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट हर एक जगह, हर एक डिपार्टमेंट में अवेलेबल होकर अपना वर्क प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, बट उस जगह पर ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा अपने देश के लिए बाध्य होती है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है? उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का हेल्प लेकर, सपोर्ट लेकर, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो टेक्निकल हो, हर एस्पेक्ट्स को देखते हुए वो इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करते हुए उस एरिया को डेवलप करती है और उसके इकोनॉमी को बेटर करती है। तो इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, लाइक कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पर काम होता है। मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर रेदर देन दे आर कॉम्पिटिटिव टू ईच अदर। सो आज हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, अदर नेम ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी और controlled economy, example China. Second one is market economy or free economy or capitalist economy, example America. And third one is mixed economy, example India. So this is the type of economy और मैं चाहूँगा आप लोग इसका नोट्स भी बनाएं as per the classification
अलॉटेड और इसको पॉइंट वाइज लिखें और बी प्रिपेयर्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गिव योर लाइक, शेयर एंड subscribe the video for more upcoming videos. Thank you.